नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर दौरे पर पहुंचे निखिल कुमार स्वामी, किले को दी भेंट। कल्याण कर्नाटक मुक्ति दिवस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन। सीएम सिद्धरामैया ने सभी स्थानांतरण अनुरोधों को नहीं कहा। कर्नाटक में 7,000 करोड़ रुपए की 91 निवेश परियोजनाओं को मंजूरी मिली। मंत्री राजन्ना ने कर्नाटक में 3 और उप मुख्यमंत्रियों की मांग की। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में सनातन धर्म विवाद का उठा मुद्दा, बीजेपी के एजेंडे में नहीं फंसने की गई अपील। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो में किया सफर, बच्चों के साथ ली सेल्फी, हंसी मजाक करते दिखे प्रधानमंत्री। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। जेडीएस नेता निखिल कुमार स्वामी बीदर दौरे पर पहुंचे, जिनका भव्य रूप से स्वागत किया गया। पूर्व मंत्री जेडीएस नेता बडेप्पा खाशमपुर, बीदर जिला यूथ घटक के अध्यक्ष मोहम्मद फेरोज खान, काउंसलर मोहम्मद नवाज खान सहित अन्य जेडीएस नेता कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और निखिल कुमार स्वामी को शहर के बाहरी क्षेत्र में रहे रिजॉर्ट से एक वाहनों के काफिले में बीदर के ऐतिहासिक किले पहुंचाया। उन्होंने किले को देखा और प्राचीन स्मारकों को निहारा और खुशी जाहिर की। किले को भेंट देने के बाद निखिल का काफिला पूर्व मंत्री और जेडीएस नेता बंडप्पा खाशमपुर बीदर शहर के निवास पहुंचे, जहां उनका स्वागत और सम्मान किया गया। प्राप्त सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि निखिल कुमार स्वामी का दौरा एक निजी समारोह में भाग लेने के लिए था। इस बीच निखिल ने मीडिया से बात की। इसके अलावा बंडप्पा खाशमपुर ने भी मीडिया से बात की। ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣಪ್ಪಣ್ಣವರು ಅವ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಜೊತೆಲಿರೋ ಅಂಥ ಹುಡುಗ. ಸೊ ಅವ್ನ ಮದುವೆ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರದ ದಿನ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೊಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಅಣ್ಣನಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮುಂಚೆನೇ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಪ್ಪಣ್ಣ ಫೋರ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಭಾಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ಜಾಗ ಬೀದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಣ್ಣಪ್ಪಣ್ಣನ ಮನೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಪ್ಲಸ್ಸು ಬಣ್ಣಪ್ಪಣ್ಣವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಬಣ್ಣಪ್ಪಣ್ಣವ್ರದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಮೈತ್ರಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಾಹೇಬರು, ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಬಂದು. ಸರ್, ಈಗ ದೊಡ್ಡಗೌಡರು ಬೀದರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಹ ಕೇಳಿರೋದು, ಬೀದರಿಂದ ಯಾರು ಸಾಹೇಬ್ರೇನಾದರೂ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಆಗ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಣ್ಣಪ್ಪಣ್ಣ ಅವರೇನು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮನೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಂಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾರನ್ನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಪಕ್ಷ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿದ್ದರು, ಆದರೂ ದೊಡ್ಡಗೌಡರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬೀದರ್ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಇಂದಾನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಯುವ ಮುಖಂಡ. ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ಗೆ ಏನದಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಳಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನವರು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಲಗ್ನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಗೀಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿಲಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೀದರು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಜರ್ನಿಗೆ ಶುಭ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಮೊನ್ನೆನೂ ಯಾರೂ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವ್ರದ್ದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಅವರು ಅವತ್ತು ನಾನು ಇದ್ದೆ ಸಂಘಟ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ಓಲ್ಡ್ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ನಮ್ಮದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಾವು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ದಾರಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅವ್ರೇನೋದಲ್ಲ ನಮಗೆ ದಾರಿ ಇರಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ. ಈಗ ಬೀದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಓಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ದಾರಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಸನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪಕ್ಷದ ನಮಗೆ ದಾರಿ ಎರೀತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗ ಒಂದು ಕೋಲಿಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಲ್ಲೇನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಅದೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಹಾಂ,
ಹೇಳಿ कल्याण कर्नाटक मुक्ति दिवस और प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन कलबुर्गी संभाग के सह प्रभारी ईश्वर सिंह ठाकुर ने आज रक्तदान कर जश्न मनाया। ये शिविर स्पर्श हॉस्पिटल, सूर्य नमस्कार संघ और अर्थु थाना परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। स्पर्श अस्पताल के डॉक्टर लोकेश हिरेमत, सूर्य नमस्कार संघ चिकाबासे काम शेट्टी अध्यक्ष शिव कुमार पाटिल, अर्थु थाना परिषद के अध्यक्ष सच्चिदानंद चिद्रे, महेश्वर स्वामी, सत्यप्रकाश विश्वराध्याय, श्याम राव हलमनगे, श्रीकांत मोदी, विवेकानंद शिव कुमार पखाल ने किया। इस शिविर में कुल 32 यूनिट रक्तदान प्राप्त हुआ। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। नई सरकार को सत्ता संभाले 112 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी तबादलों के अनुरोध मिल रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपने मंत्रियों, विधायकों और एमएलसी से सख्ती से कहा है कि उन्हें तबादलों के किसी भी अनुरोध का स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक कि ये प्रशासनिक कारणों से न हो। तबादलों की आखिरी सूची 13 सितंबर को थी, जब 7 नौकरशाहों और अगले दिन 14 सितंबर को 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया था। केपीएससी सचिव विकास किशोर सुरुलकर के तबादलों को लेकर सोशल मीडिया पर आलोचना हुई। बीजेपी विधायक का कहना है कि अच्छे अफसरों को नहीं मिलती पहचान। विकास किशोर सुरुलकर को बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। केपीएससी अभ्यर्थियों ने एक्स पर पोस्ट किया, सम्मानित मंत्रीगण कृपया केपीएससी सचिव विकास किशोर सुरुलकर को स्थानांतरण आदेश वापस ले। ऐसा नहीं किया गया तो उनके नेतृत्व में केपीएससी में सुधार हो रहा था। शुक्रवार को भी छात्रों और केपीएससी अभ्यर्थियों के एक समूह ने उनकी बहाली की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। राज्य स्तरीय एकल खिड़की मंजूरी समिति SLSWCC ने राज्य के भीतर 18,146 रोजगार सृजन क्षमता वाले 7,659.52 करोड़ रुपए के 91 औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। उद्योग मंत्री के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार मारुति सुजुकी इंडिया एक्स कंज्यूमर, साउथ वेस्ट माइनिंग और टाटा सेमीकंडक्टर और क्रिप्टन इंडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कुछ शीर्ष निवेशकों में से है। उद्योग मंत्री एमबी पाटिल की अध्यक्षता वाली SLSWCC समिति ने 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें से प्रत्येक में 50 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश है और 13,742 नौकरियां पैदा करने की क्षमता है। 15 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए के बीच के 57 निवेश परियोजनाएं कुल 1,144 करोड़ 94 लाख रुपए की है, जिनमें 4,404 रोजगार सृजन की संभावना है। 763 करोड़ 85 लाख रुपए के अतिरिक्त निवेशों वाली 8 परियोजनाओं को भी समिति द्वारा मंजूरी दी गई है। सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की संभावनाओं को बढ़ावा देने में मदद के लिए कर्नाटक में 3 और उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने का विचार रखा। सीएम सिद्धरामैया के कट्टर समर्थक राजन्ना ने कहा कि वो कांग्रेस आलाकमान के सामने अपना विचार रखने के लिए समान विचारधारा वाले विधायकों और पार्टी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली ले जाएंगे। उन्होंने विस्तार से बताया कि मेरी निजी राय है, मैं आलाकमान को लिखूंगा, मैं अक्टूबर से पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलूंगा। 3 डिप्टी सीएम किसे बनाया जाए, इस पर आलाकमान को फैसला लेना चाहिए, ये पार्टी के हित में है। राजन्ना ने स्पष्ट किया कि वो इस पद की दौड़ में नहीं है। अगर विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर कांग्रेस को वोट देने वाले समुदायों को डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो इससे लोकसभा चुनाव में पार्टी को मदद मिलेगी। कुछ विधायकों ने भी यही विचार मुझे बताए हैं। राजन्ना ने सुझाव दिया कि 3 डिप्टी सीएम पद वीरशैव, लिंगायत, एससी और एसटी और अल्पसंख्यक समुदायों के नेताओं को दिए जाने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो वर्तमान उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ नहीं है, जो कांग्रेस राज्य इकाई के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि मैं डीके ब्रदर्स के खिलाफ नहीं हूं, मुझे खुशी है कि शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हैं। थिएटर निर्देशक और कार्यकर्ता प्रसन्ना के नेतृत्व में इंडियन थिएटर फाउंडेशन का भारतीय शैक्षिक रंगमंच संस्थान 19 से 24 सितंबर तक मैसूर में राष्ट्रीय मक्कल रंगोत्सव, राष्ट्रीय बाल रंगमंच महोत्सव का आयोजन करेगा। 6 दिवसीय महोत्सव के दौरान मैसूरू, चामराजनगर और रामानगर जिले में लगभग 50 नाटकों का मंचन किया जाएगा। सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ सोमवार को हार्डिट पीयू कॉलेज परिसर में थिएटर फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे। प्रसन्ना ने महोत्सव का पोस्टर जारी करने के बाद कहा कि कन्नड़ थिएटर दर्शकों को खो रहे हैं। आज सिनेमा और टेलीविजन धारावाहिक दर्शकों के पसंदीदा बन गए हैं। घर पर अपनी स्क्रीन से चिपके रहने के कारण दर्शक अब सिनेमा घरों में नहीं आ रहे हैं, जिससे थिएटर कलाकारों को कहीं और रोजगार की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल थिएटर की शुरुआत की। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हैदराबाद में नई गठित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज दूसरे दिन की बैठक में सनातन धर्म को लेकर छिड़े विवाद पर चर्चा हुई। सनातन धर्म पर द्रविड़ मुनेत्र कशगम डीएमके नेताओं की टिप्पणियों से बढ़ते विवाद के बीच कांग्रेस के कुछ नेताओं ने शनिवार को इस विषय पर सावधानी भरा रुख अपनाने और पार्टी से बीजेपी के एजेंडे में नहीं फंसने की अपील की। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी अपनी राय रखी। सूत्रों ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कुछ नेताओं ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कहा कि पार्टी को ऐसे मुद्दों से दूर रहना चाहिए और इसमें नहीं फंसना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने कहा कि नेताओं को सनातन धर्म विवाद में पड़ने के बजाय गरीबों और उनके मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि वे पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि पार्टी को गरीबों के मुद्दे उठाने चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति के हों। सूत्रों ने बताया कि सीडब्ल्यूसी की बैठक के दौरान भूपेश बघेल और दिग्विजय सिंह दोनों ने कहा कि सनातन धर्म विवाद पर बोलने से पार्टी को नुकसान होगा और बीजेपी को मदद मिलेगी। पार्टी की एक ब्रीफिंग में इस विषय पर पूछे जाने पर सीनियर नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस इस विवाद में नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 17 सितंबर को धोला कुआं से मेट्रो का सफर करते हुए द्वारका पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया। इस मेट्रो स्टेशन को 940 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जो कि यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर के पास स्थित है। बता दें कि मेट्रो में सफर कर रहे पीएम मोदी ने यात्रियों से भी मुलाकात की। इस दौरान वे यात्रियों से बात करते दिखे और उनके साथ फोटो खिंचवाने वालों की होड़ लग गई। मेट्रो में उन्होंने लोगों के साथ सेल्फी ली और खूब हंसी मजाक किया।
इस दौरान पीएम मोदी एक बच्चे के साथ खेलते भी नजर आए। बता दें कि पीएम मोदी आज अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस दौरान वे आज यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने वाले हैं। ये कन्वेंशन सेंटर 5,400 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जो विश्व का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। बता दें कि पीएम मोदी हर साल अपने जन्मदिन पर कुछ ऐतिहासिक काम करते हैं। ऐसे में आज श्रमिकों को पीएम मोदी खास तोहफा देने वाले हैं। दरअसल आज पीएम मोदी श्रमिकों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करने वाले हैं। इस योजना का मकसद श्रमिकों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। पीएम मोदी हर साल अपने जन्मदिन के अवसर पर कुछ ऐतिहासिक काम करने का प्रयास करते हैं। 17 सितंबर यानी आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने आज दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि कहे जाने वाले भारत के पहले इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC का उद्घाटन किया। यशोभूमि दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, जिसे 5,400 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इस कन्वेंशन सेंटर में कई हॉल्स हैं, जहां प्रदर्शनियां लगाई जा सकेंगी, जो अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है। यशोभूमि की खासियत की अगर बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा MIC मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर है। हाल ही में आयोजित G20 समिट के मद्देनजर जिस भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर को तैयार किया गया था, यशोभूमि उससे भी काफी बड़ा है। यशोभूमि का निर्माण 219 एकड़ में किया गया है, जबकि भारत मंडपम को 123 एकड़ जमीन में तैयार किया गया है। इसके लिए पीएम मोदी ने यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो का भी उद्घाटन किया, जिसे 940 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है, जो शहर IGI एयरपोर्ट की टर्मिनल 3 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। नए संसद भवन के गज द्वार पर आज तिरंगा फहराया गया। संसद भवन की नई बिल्डिंग के गज द्वार पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तिरंगा फहराया। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत तमाम नेता मौजूद रहे। गौरतलब है कि ध्वजारोहण समारोह सोमवार से शुरू होने वाले 5 दिवसीय संसद सत्र से एक दिन पहले किया गया है। इस सत्र में संसदीय कार्यवाही पुराने से नए भवन में ट्रांसफर की जा सकती है। बता दें कि पीएम मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। हालांकि इस मौके पर विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल नहीं हुए। उन्होंने निराशा जताते हुए कहा था कि उन्हें इस समारोह का न्योता देने में देरी की गई। खड़गे ने शनिवार को राज्यसभा महासचिव PC मोदी को पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि खड़गे को समारोह का न्योता 15 सितंबर को देर शाम को मिला था। खड़गे का कहना है कि वो 16-17 सितंबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भाग लेने के लिए हैदराबाद में हैं और रविवार की रात में दिल्ली लौटेंगे। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू हो रहा है। ऐसे में कैबिनेट मंत्रियों को नए संसद भवन में कमरों का बंटवारा किया जा चुका है। जिन मंत्रियों को कमरे मिले हैं उसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, अर्जुन मुंडा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव शामिल हैं। पीएम मोदी का आज 73वां जन्मदिन है। इस मौके पर देश भर से उन्हें बधाई संदेश मिल रहे हैं। कई लोगों ने तो अनोखे अंदाज में पीएम मोदी को बधाई दी है। दरअसल पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए बीजेपी आज से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मना रही है। वहीं मोदी फैंस अलग अलग अंदाज में उनका जन्मदिन मना रहे हैं। लखनऊ में सुनील त्रिवेदी नाम के शख्स ने 1900 पेज पर 1,25,000 बार पीएम का नाम लिखा है। ओडिशा के कटक में एक स्मोक आर्टिस्ट दीपक बिस्वाल ने मोदी की अनोखी स्मोक पेंटिंग बनाई है। अहमदाबाद में बच्चों ने क्रूज पर पीएम का बर्थडे मनाया है। वहीं लखनऊ में पीएम के जन्मदिन पर दिव्यांगों ने 1 किलोमीटर 25 मीटर लंबा जन्मदिन कार्ड भी बनाया है। एक जगह तो पीएम का दूध से भी अभिषेक किया गया है। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed एंड B.Ed कॉलेज बिदर
recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। रूस की कई दिनों तक यात्रा करने के बाद उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन रविवार को स्वदेश रवाना हो गए। स्वदेश वापसी से पहले किम जोंग ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। माना जा रहा है कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच हथियारों की महत्वपूर्ण डील हुई। हालांकि द्विपक्षीय वार्ता के बिंदुओं को मीडिया से साझा नहीं किया गया। रूस और उत्तर कोरिया में हथियारों की डील से आशंकित अमेरिका ने दोनों देशों को किसी भी तरह की ऐसी डील करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी, मगर किम जोंग और पुतिन ने अमेरिकी चेतावनी को कोई महत्व नहीं दिया। उत्तर कोरिया की रवानगी से पहले किम जोंग उन ने रूस के महत्वपूर्ण हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों का दौरा किया। उन्होंने रूस के परमाणु बमवर्षक विमानों को भी देखा। इसके बाद वो प्रशांत बेड़े में रूसी युद्धपोत देखने भी गए। रूस के परमाणु बमवर्षक विमानों को और किंजल मिसाइल को देखकर उनका दिल आ गया। कहा जा रहा है कि किम जोंग ने रूस को हथियार, मिसाइल और गोला बारूद मुहैया कराने के बदले में बमवर्षक विमान और किंजल मिसाइल की इच्छा जाहिर की है। अफगानिस्तान की सत्ता में काबिज तालिबान महिलाओं पर अब तक कई तरह की सख्त पाबंदियां लगा चुका है। तालिबानी सरकार ने अब अपने एक नए फरमान में महिला पुरुषों के तंग कपड़े पहनने पर पाबंदी लगा दी है। सरकार ने कहा कि इस तरीके के कपड़े पहनना अफगानिस्तान संस्कृति के खिलाफ है। ये प्रतिबंध अफगानिस्तान के बामियान में लगाए गए हैं। तालिबान प्रशासन ने वहां के दुकानदारों को तंग और पतले कपड़े हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये शरिया और अफगानी संस्कृति के विपरीत है। सदाचार विभाग ने इसे पश्चिमी संस्कृति की नकल बताते हुए प्रांत के नागरिकों को तंग, पतले और छोटे कपड़े न पहनने का आदेश दिया। अफगानिस्तान के सदाचार विभाग ने कहा कि हम मुस्लिम हैं और हमारी संस्कृति इस्लामी है। हमें ऐसे कपड़े आयात करने चाहिए जो अफगान संस्कृति और परंपरा के अनुरूप हो। उन्होंने पश्चिमी शैली के कपड़ों की आयात न करने की सलाह दी। सदाचार विभाग के प्रमुख महमूदुल हसन मंसूरी ने कहा कि इस तरह के कपड़े हमारी संस्कृति के खिलाफ है, इसलिए इन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। सनी देओल ने धर्मेंद्र के संग शेयर की प्यार भरी फोटो, बहन ईशा ने उतारी नजर। अब समाचार खेल जगत से है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका, 50 रन पर ऑल आउट हुई श्रीलंका, गेंदबाजों का कहर। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। डोमेस्टिक क्रूड पर सरकार ने विंडफॉल टैक्स में किया इजाफा, डीजल एटीएफ एक्सपोर्ट पर शुल्क घटा। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर दौरे पर पहुंचे निखिल कुमार स्वामी, किले को दी भेंट। कल्याण कर्नाटक मुक्ति दिवस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन। सीएम सिद्धरामैया ने सभी स्थानांतरण अनुरोधों को नहीं कहा। कर्नाटक में 7,000 करोड़ रुपए की 91 निवेश परियोजनाओं को मंजूरी मिली। मंत्री राजन्ना ने कर्नाटक में 3 और उप मुख्यमंत्रियों की मांग की। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में सनातन धर्म विवाद का उठा मुद्दा, बीजेपी के एजेंडे में नहीं फंसने की गई अपील।
पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो में किया सफर, बच्चों के साथ ली सेल्फी, हंसी मजाक करते दिखे प्रधानमंत्री। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।